নমস্কার বন্ধুরা, আজ আমরা এখন আছি গুজরাটের ভুজ শহরে। আর সকালবেলায় আমরা হোটেল থেকে বেরিয়ে বিভিন্ন সাইট সিন দেখবো বলে বেরিয়েছি। এই দেখুন, এখানে লেখা আছে ওয়েলকাম টু ভুজ। তো সকালবেলা আমরা একটি অটো নিয়েছি, আমাদের সারাদিন ঘুরিয়ে আমার স্টেশন পর্যন্ত ছেড়ে দেবে। তার জন্য আমাদের নিয়েছি মাত্র 1200 টাকা। এবং আমাদের প্রথম দর্শনীয় স্থান হিসাবে আমাদেরকে বলেছেন যে স্মৃতিবন মিউজিয়াম। তো আমরা ভেবেছিলাম যে ঘন্টাখানেক দেখে বেরিয়ে আসবো, কিন্তু উনি আমাদেরকে প্রথমেই বলে দিয়েছিল যে এটা আপনাদের দেখতে অনেকটা সময় লাগবে, তো আপনারা প্রথমে এটা দেখুন, তারপরে অন্য জায়গাগুলো নিয়ে যাব। তো সেই মতো আমরা প্রথমে এই জায়গাটা দেখতে, এই যে দেখুন, এই যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন, পুরো মিউজিয়ামটা কিন্তু ঠিক এই রকম ধরনের। আমরা পাহাড়ের উপরে উঠে মিউজিয়ামটা দেখব। তো গেটে এন্ট্রির জন্য আমাদের 20 টাকা করে টিকিট নিয়েছে। আমরা টিকিটটা নিয়ে আশপাশে ঘোরার জন্য, কিন্তু ভিতরে নয়। জাস্ট এই যে রাস্তাগুলো আছে, এই যে মিউজিয়ামের চারিধারে যে জায়গাগুলো আছে, এইগুলো সুন্দর করে দেখার জন্য। এবং ভিতরে গিয়ে আপনারা টিকিট কাটতে হবে 300 টাকা করে, প্রত্যেকের মাথা পিছু টিকিট। সত্যি আমরা যখন প্রথম টিকিট কাটতে যাচ্ছেন, তখন একটু হয়তো গায়ে লাগছিল 300 টাকা টিকিট, কিন্তু আপনাদেরকে বলে বোঝাতে পারবো না যে আমরা কি দেখেছি। এই 300 টাকাটা আমাদের কাছে খুব একটা বড় কথা নয়। এই 300 টাকা যেন শেষে ভাবছিলাম অনেকটা কম নিয়েছে, এটা 700-800 টাকা নিলেও আমাদের কোনো গায়ে লাগবে না। কারণ এই মিউজিয়ামটা পুরোটা দেখে কমপ্লিট করতে আমাদের প্রায় 4 ঘন্টা সময় লেগেছে। আর এই মিউজিয়ামটা নরেন্দ্র মোদী প্রথম উদ্বোধন করেন, এবং ওনার তত্ত্বাবধানে এটি তৈরি হয়েছিল। এবং এই মিউজিয়ামটা হয়েছিল গুজরাটের ভূমিকম্প হবার পর। কারণ এই মিউজিয়ামটা স্মৃতিবন ভূমিকম্প মিউজিয়াম। স্মৃতিবন কেন? ভূমিকম্পের কিভাবে হয়েছিল, এই গুজরাটে যে ভূমিকম্প হয়েছিল কিভাবে হয়েছে, কি কি কারণে হয়েছিল, সেই সময় কি কি করা হয়েছিল, কোন কোন দেশ থেকে কোন কোন জায়গা থেকে কত টাকা ডোনেট এসেছিল, সেই টাকাগুলো কোন কোন খাতে ব্যবহার হয়েছিল, কিভাবে ব্যবহার হয়েছিল, এবং ভূমিকম্পের পরে যে সকল জিনিসগুলো পাওয়া গেছে, এখানে অনেকের বাড়িতে টিভি পাওয়া গেছে, বিভিন্ন রকম জিনিস, সেইগুলো সবই নিয়ে এখানে স্মৃতিমহল হিসাবে তুলে ধরেছে। এবং এতটা সুন্দর, যেটা জাস্ট বলে বোঝাতে পারবো না। আমাদের তো ভীষণ ভীষণ ভালো লেগেছে, তাই আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আমি ভিডিওটি পুরোটাই করেছি। হয়তো ভিডিওটা অনেকটা লং হয়েছে, আমরা যেহেতু এই ভিডিওটা দেখতে সময় লেগেছে পুরো পাক্কা 4 ঘন্টা, এই মিউজিয়ামটা 4 ঘন্টা সময় লেগেছে। তো সেখান থেকে কিছুটা কেটে কেটে আমরা যতটা পেরেছি আপনাদেরকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। তো ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখুন। হয়তো ভিডিও অনেকটা লং, কিন্তু তা হলেও আপনারা একটু ধৈর্য ধরে দেখুন, অবশ্যই ভালো লাগবে। এই জায়গাটা দেখুন, এখানে খুব সুন্দর, এই যে ছাতার মতো করা আছে। আমাদের উপর দিকটা উঁচু হয়, কিন্তু এখানে দেখুন নিচের দিকটা নিচু। কারণ ওই যে ছাতাতে যে জলগুলো পড়বে, সেই জলগুলো দেখুন এই পাইপের মাধ্যমে মাটির নিচে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই যে দেখুন, এই ছাতার চারিধারে যে জলটা পড়বে, মাঝখান দিয়ে এসে পাইপের মাধ্যমে এই যে জলগুলো পাসিং হচ্ছে। এবং খুব সুন্দর একটি প্ল্যানিং করা, এবং খুব দারুণ একটি জায়গা। এই দেখুন, টিকিটগুলো প্রত্যেকের মাত্র 300 টাকা করে নিয়েছে। स्वागत है। यह म्यूजियम अभी फोटोज और वीडियोस नहीं। निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तंभता से सृष्टि का नवगान। जो आज आप देखते हैं वो कल नहीं था, और शायद कल नहीं होगा। प्राकृतिक संसार में जो भी आप देखते हैं
लगातार बदलाव के कारण है। हवाएं, बारिश, सूखा, भूकंप, सुनामी या ज्वालामुखी, ये सब इस दुनिया को कहीं जमीन उभर आती है तो कहीं नदियां बहने लगती हैं। हमारा अस्तित्व भी इसी परिवर्तन के कारण है। ये लगातार बदलाव दुनिया को नया और जीवंत बनाता है। ये निर्धारित करता है कि कौन और क्या अस्तित्व में आएगा और उसका रूप क्या होगा। मानव इस लगातार परिवर्तन को स्वीकार करता है और इससे बदलाव अपनाने की उसकी क्षमता बढ़ती है। तभी ऊंट तैरना सीख जाते हैं, चिंकारा 2 बूंद ओस पर जिंदा रहता है और पौधे खारे पानी में पनपने लगते हैं। बदलाव के साथ सीखने, समझने और नया रूप लेने की ये कहानी यूं ही चलती रहती है। परिवर्तन को संसार अपनाता है कि वो नित नया रूप ले सके। पर्वत उभर आते हैं जहां कल सागर फैला था। लहरें कल वहां झूमेंगी जहां आज भूमि की बाहें फैली हैं। कल कुछ पशु पक्षी लुप्त हो जाएंगे या नया रूप ले लेंगे। परिवर्तन शाश्वत है। इस संग्रहालय में आप लगातार परिवर्तन और उसे अपनाने की मानवीय क्षमता को नजदीक से जानेंगे। यह यात्रा धरती के जन्म लेने से शुरू होगी और उस कल तक जाएगी जिसका निर्माण हम सब मिलकर कर रहे हैं। स्मृतिवन अर्थक्वेक म्यूजियम में आपका स्वागत। थर्मोमीटर डिस्प्ले किया गया है। उस थर्मोमीटर के माध्यम से आप माउंट एवरेस्ट को दिखाया गया है 11,034 मीटर और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,849 मीटर और ऐसा माना जाता है कि रशिया में स्थित है और इसकी गहराई है 12.2 किलोमीटर। तो जितने भी जीव-जंतु वनस्पति हैं वो जमीन के अंदर लग जाते हैं और लगातार और कुछ सालों बाद हमें वो फॉसिल मिलते हैं। विंडोज को देखने के बाद सभी यहाँ फर्स्ट मॉडल के पास सर्कल बना लेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी इलाके की टेक्टोनिक प्लेटें निरंतर सक्रिय है। लिथोस्फीयर की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार हिलती हैं, कंपन। এখানে দেখাচ্ছে কিভাবে ভূমিকম্প হয়, তার বিভিন্ন রকমভাবে মডেল এবং দেখে নিতে পারবেন। এই দেখুন, এই তিন রকমভাবে ভূমিকম্প হওয়ার চান্স হয় আমাদের। এই প্লেটের যে কাজকর্মগুলো হয় আমাদের ভূপৃষ্ঠের ভিতরে, সেইগুলো এখানে প্রচুর জায়গায় প্রচুর রকমভাবে দেখানো যায়। এই বিভিন্ন রকম রক আছে এখানে, যেগুলো সবই এখানে দেখিয়েছে। यह पृथ्वी जो मनुष्य का एकमात्र निवास स्थान है, निरंतर परिवर्तन से गुजरती रही है। यह हरी भरी धरती
लगातार हुए बदलावों का ही नतीजा है। साढ़े 4 अरब साल पहले ये धरती पिघली चट्टानों और सल्फर के उबलते समुद्र की तरह थी, जहां जीवन की कल्पना करना भी असंभव था। समय के साथ यहां का तापमान गिरता गया, जिससे पृथ्वी की कई संकेंद्रित परतें क्रस्ट, मैंटल और कोर बनने लगी। मैंटल की ऊपरी सतह एस्थेनोस्फेयर मोटी और चिपचिपी थी। इसके ऊपर लिथोस्फीयर, जो एक भूखंड था, तैरता था, जिससे आगे चलकर महाद्वीप बने। लिथोस्फीयर की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार हिलती डुलती रहती हैं, कभी आपस में टकराती हैं तो कभी दूर हो जाती हैं। और इसी के परिणाम स्वरूप पर्वतमालाएं, गहरी घाटियां और नए महाद्वीप बने। समय के साथ ग्लेशियरों के बीच होने वाली गतिविधियों से पृथ्वी का तापमान और जलवायु जीने लायक बन गए, जिससे यहां जीवन की शुरुआती परिस्थितियां बनने लगी। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि 65 करोड़ साल पहले क्रायोजेनियन युग में एक बड़ा महाद्वीप टूटा, जिससे गोंडवाना, लॉरेंशिया, बाल्टिका और साइबेरिया बने। कहा जाता है कि 35.5 करोड़ साल पहले कार्बोनिफेरस युग में गोंडवाना और लॉरेंशिया की प्लेटें आपस में टकराईं, जिससे पेंजिया महाद्वीप बना। धीरे धीरे समय गुजरने के साथ पेंजिया के और टुकड़े होते गए, जिससे आज के महाद्वीप बने। जिंदगी भी यहाँ आए बदलावों और उनकी चुनौतियों को स्वीकार कर उनके अनुरूप ढलती रही। कुछ प्रजातियों ने खुद को इसके अनुकूल बनाया, कुछ विकसित हुई और कुछ नष्ट हो गई। बदलावों का यह सिलसिला आज तक जारी है। हमारी पृथ्वी लगभग 4.5 अरब साल पहले अस्तित्व में आई और तब से विकास कर रही है। हमारी पृथ्वी की रचना, उसकी बनावट और उसमें जो भी परिवर्तन आए हैं, उससे पहले भी ये संभव है। यहाँ पे वो विकसित हुई है जिसमें वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग इसी समय भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना से टूटकर उत्तर दिशा में एशिया के मुख्य भूभाग की तरफ बढ़ने लगा। इनके टकराने से हिमालय का जन्म हुआ। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,849 मीटर है और मारियाना ट्रेंच की गहराई 11,034 मीटर है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी इलाके की टेक्टोनिक प्लेटें निरंतर सक्रिय हैं। लिथोस्फीयर की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार हिलती हैं। उनमें पहले भी हलचल होती थी और भविष्य में भी होगी, जिससे भूकंप आएंगे, कंपन होगा और नए बदलाव आते रहेंगे। आने वाले कुछ दशकों या शताब्दियों में महाद्वीपों की स्थिति और रूप में परिवर्तन होते रहेंगे, पर इन बदलावों के आगे संसार और मानव ने कभी हार नहीं मानी, बल्कि स्वयं को नई परिस्थितियों के अनुसार ढाल लिया। लगातार होने वाले परिवर्तन और उसे अपनाने की मानवीय क्षमता की ये कहानी यूं ही चलती रहती है।
ज़्यादातर उस वक्त लोथल से व्यापार हुआ करता था। रूट का पूरा कनेक्शन लोथल से दिखा है। आदि मानव से मानव में जैसे जैसे विकास हुआ उनकी ज़रूरियातें भी बढ़ती गई। उन्हें पूरा करने के लिए कई सारी चीज़ों की खोजें की गई, जिसे हम पीछे 8 विंडो में देखेंगे। किसी भी चीज़ को टच नहीं करना है, आपकी लाइन को मेंटेन करते हुए इस तरह आगे चलें। लाइन में चलिए, विंडो को देखते हुए इस तरफ आगे आना चाहिए। आगे चाहिए आगे। আমরা এই একটা 1 নম্বর গ্যালারি থেকে শো দেখতে দেখতে এখান থেকে বের হলাম। এবার আমরা যাচ্ছি 2 নম্বর গ্যালারিতে। এখানে 2 নম্বর গ্যালারি এন্ট্রি পোর্ট। এইভাবে আমরা ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠবো। দেখুন একটা স্কুল থেকে এসছে। টোটাল আমাদের 7টা গ্যালারি। এখানে 7টা গ্যালারি দর্শন করব। সবে একটা গ্যালারি দেখলাম। समय और प्रकृति ने गुजरात के इस भूभाग को विभिन्न भौतिक विशेषताएं प्रदान की। ऊंचे ये पहाड़, एक लंबी तटरेखा, दिनों के प्रसुप्त ज्वालामुखी, बड़े रण में चमचमाते नमक के मैदान, छोटे रण में इटलाती हुई नदियां और कंडला तथा मुंद्रा के मैंग्रोव वन। विविधताओं के इस प्रदेश में कटीले जंगल, गुल्म व कीचड़दार भूमि और खाड़ियों ने भी जन्म लिया। यहाँ भूमि पर जितनी विविधताएं हैं वो इसकी सतह के नीचे होने वाली हलचल का परिणाम है। सक्रिय फॉल्ट लाइन और टेक्टोनिक प्लेट की गतिविधियां सतह के ऊपर निरंतर परिवर्तन कर उसे नवीन रूप देती रहती है। गुजरात ने सब झेला है। 1600 किलोमीटर लंबी यह तटरेखा भारत की सबसे लंबी तटरेखा है। यह कई प्राकृतिक विविधताओं और परितंत्रों का घर है। मैंग्रोव, तटभूमि, कोरल रीफ, खार स्थान, सागर तट और नीली झीलें सब हैं यहाँ। ये तटरेखा लुभावनी तो है, लेकिन इसकी लंबाई के कारण गुजरात में चक्रवात, सुनामी और बाढ़ की संभावना बनी रहती है। फॉल्ट लाइन भूकंपों का कारक है और शुष्क जमीन की वजह से समय समय पर सूखा पड़ता है। लंबी तटरेखा और वायु दबाव में आने वाले अंतर के कारण चक्रवात आते हैं, जिनके 2 स्पष्ट मौसम है यहाँ। पिछले 100 सालों में इस प्रदेश में 120 से भी ज्यादा चक्रवात आए हैं, जिन्होंने राज्य में तबाही मचा दी। गुजरात सुनामियों से भी परिचित है। समुद्र की सतह के काफी नीचे कराची पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में मकरान सबडक्शन जोन है। यह एक सक्रिय फॉल्ट क्षेत्र है जिससे बड़े पैमाने के भूकंप आते हैं, जो विनाशकारी सुनामी का कारण बनते हैं। इससे 12 मीटर तक ऊंची लहरें पैदा होती हैं। ऐसी ही लहरें कांडला बंदरगाह पर 1945 में टकराई थी। अरब सागर में स्थित तिकोने आकार की खंबात की खाड़ी ऐसा जलाशय है जिसमें साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती सहित कई नदियों का विलय होता है। खंबात की खाड़ी के उत्तर में कच्छ की खाड़ी है, जो रण को काठियावाड़ प्रायद्वीप से अलग करती है।
गुजरात के दक्षिणी भाग में सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाएं प्रायद्वीप के तटीय क्षेत्र से मिलती हैं। जिससे क्षेत्र में घने हरित वर्षावन बन गए हैं। बारिशों के कारण जमीन उपजाऊ तो हो गई है, किंतु इस वजह से निरंतर बाढ़ आती रहती है। गुजरात के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में काठियावाड़ प्रायद्वीप फैला है। यह एक शुष्क क्षेत्र है जो तटों से उठते हुए निचले स्तर की पहाड़ी भूमि तक फैला है, जहां 6 करोड़ साल पुराना प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। उत्तर पूर्वी गुजरात एक अर्ध शुष्क भूमि है जिसमें बहुत सारे कटीले जंगल हैं। यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम और अनिश्चित ढंग से होती है और लगातार सूखा पड़ता है। इस राज्य की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है सन 1990 से आज तक खाने और पानी की कमी ने राज्य को 30 बार त्रस्त किया है। कच्छ उत्तरी गुजरात के सूखे मैदानी क्षेत्रों के बिल्कुल बगल में है। रण में दुनिया का सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान है जो स्थलाकृतीय और भूवैज्ञानिक दृष्टि से एक अजूबे से कम नहीं है। इसमें ऊंची चट्टानी भूमि, पर्वतीय श्रृंखला और तटीय मैदान है। यह एक अनोखा क्षेत्र है जो उठे हुए तलछट भंडार, कीचड़ और नमक के मैदानों से मिलकर बना है। और अब यह बहुत से वन्य जीवों जैसे भारतीय जंगली गधा, बन्नी भैंस और चिंकारा का घर है। रण के ये विशाल नमक के मैदान बाढ़ में कच्छ जिले को छोटे द्वीप में परिवर्तित कर देते हैं। गर्मियों के दौरान कच्छ एक आर्द्र भूमि से रेतीले नमक के मैदान में परिवर्तित हो जाता है। इस क्षेत्र में भूकंप का आना बहुत आम बात है। साथ ही साथ जामनगर, राजकोट, पाटन और बनासकांठा ये स्थिति बनी रहती है। 17वीं शताब्दी से अब तक यहाँ मध्यम से बहुत बड़े पैमाने वाले भूकंपों का इतिहास रहा है। अपनी भौगोलिक, भौतिक और जलवायु की विशेषताओं के कारण गुजरात में विभिन्न प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। इन घटनाओं का प्रभाव अनिश्चित और अप्रत्याशित होता है और परिणाम हमेशा एक ही होता है। उसे समुद्र से उभार दिया। यह क्षेत्र अपने आसपास की भूमि से मिल गया, लेकिन पूरी तरह नहीं। इसमें दोनों गुण मौजूद थे और यह एक उभयचर की तरह पानी से उभरता और उसमें समाता रहा। समय के साथ जमीन के अंदरूनी हिस्से में होने वाली हलचल ने, जो आज भी जारी है, इसे एक खास रूप में ढाला। कुछ ऐसा ही सन 1819 में भी हुआ। 16 जून 1819 की शाम को जमीन में कुछ हलचल हुई जिसने पश्चिमी भारत के स्वरूप को फिर से परिवर्तित कर दिया। 7.9 मैग्नीट्यूड वाले भूकंप ने इस क्षेत्र को तबाह कर दिया। प्रकृति का प्रकोप इतना था कि जमीन पृथ्वी की सतह से ऊपर आ गई।
अल्लाह बंद एक प्राकृतिक पट्टी जमीन से उभर आई जो 70 से 90 किलोमीटर लंबी, 16 मीटर चौड़ी और लगभग 4 मीटर ऊंची थी। समय के साथ इसका एक बड़ा हिस्सा खाड़ी में तब्दील हो गया। इस उभरी भूमि को बड़े सम्मान के साथ लोग अल्लाह बंद यानी भगवान का बंद कहते हैं। आज इसका ज्यादातर हिस्सा भारत में और थोड़ा सा पाकिस्तान में है। इस भूकंप ने इस इलाके को हमेशा के लिए बदल दिया। नदी पर बांध बन गया और यह क्षेत्र रेगिस्तान में परिवर्तित हो गया। कच्छ के रण का आज जो रूप है, एक बंजर नमकीन रेगिस्तान, वह इस भूकंप के कारण ही है। सिंधु की सबसे पूर्वी जलधारा नारा नदी ने अपना रास्ता बदला और पश्चिम दिशा की तरफ मुड़ गई, जिसकी वजह से यहां से पानी, नदियों के रास्ते होने वाला व्यापार और वो सब कुछ चला गया जो यहां जिंदगी का आधार था। अल्लाह बंद के दक्षिण में जो ताजे पानी की भूमि थी वो लगभग 6 मीटर धंस गई, जिससे एक बड़ी खारे पानी वाली झील सिंदरी झील बनी। सन 1819 में कप्तान जेम्स मैकमर्डो कच्छ में ही तैनात थे और उन्होंने अपनी डायरी में उस रात की सभी घटनाएं दर्ज की। घबराहट और भय उत्पन्न करने वाली गहरी आवाजें, तबाही की सूचना देता धरती का कंपन, इमारतों का विध्वंस, बेचैनी और दहशत, एक बयान न की जा सकने वाली भयावह सनसनी। भौगोलिक रूप से यह भूकंप सहभूकंपीय सतह विरूपण का प्रमाण था। इंट्राप्लेट कच्छ रिफ्ट बेसिन में क्रस्टल के निरंतर सिकुड़ने और दबाव का सबूत। एक विशाल प्राकृतिक आपदा, इस भूकंप ने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। भुज और कई शहरों को तबाह बर्बाद कर दिया। अहमदाबाद की जमी मस्जिद की मीनारें ढह गईं। अंजार, सिंदरी और लखपत के किले भी नदियों में समुद्र का खारा पानी भर गया और भूकंप के पश्चात झटके महीनों तक आते रहे। भौगोलिक कारणों से बनने के 200 साल बाद भी अल्लाह बंद दृढ़ता से खड़ा है, अपरदन से अप्रभावित और अपने बनाए भूक्षेत्र पर प्रभुत्व रखता। हालांकि नए अध्ययनों के अनुसार कहा जा रहा है कि अल्लाह बंद के सबसे ऊंचे हिस्से से संपूर्ण रैखिक टीले के अपरदन का पता लगता है। यह इस सत्य की भी पुष्टि करता है कि मनुष्य और प्रकृति अपनी यात्रा में इन बदलावों को अपनाते हैं और उनके साथ साथ बदलते और विकसित होते हैं। सुबह 8:46 पर यह भूकंप आया था। भूकंप बचाव के बाद चौबारी गांव से स्टार्ट हुआ था 7.6 मैग्नीट्यूड से और ये भूकंप पूरे 90 सेकंड तक चला था। उस 90 सेकंड में लोगों ने क्या फील किया, आगे हम 6 वीडियो के माध्यम से देखेंगे। किस प्रकार लोग डेली रूटीन में बिजी थे और ये भूकंप आया। आगे आ जाएंगे। नीचे टाइमिंग, ऊपर इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है और आवाज को साउंड के जरिए ভূমিকম্পের সময় যে জায়গাগুলি মানে এই দেখুন এখানে একটা লিখেছে একটা দোকান ভালো অবস্থা ছিল, মানে একটা সাইড ভেঙে গেছিলো কিন্তু দোকানটা একমাত্র অক্ষত অবস্থা ছিল। সেই দোকানটাকে এখানে তুলে ধরেছে। এখানে এই দোকানটা এবং দোকানের নাম, সেই দোকানটা আছে এবং ওখানে দেখলেন আগে একটি বাড়িতে টিভি ছিল, টিভিটা ভালো ছিল, সেই টিভিটাকে এখানে মিউজিয়ামের মধ্যে রেখেছে এবং সেই মুহূর্তে যে
ভিডিওটি চলছিল, মানে সানাই বাজছিল, ঠিক সেটাই এখানে তুলে ধরেছে। के बाद की रियल फोटोज दी गई है स्क्रीन के ऊपर, वो देख लीजिएगा। भूकंप से बाहर की ज्यादातर लोगों के घर टूट गए थे और कुछ लोगों के घर सुरक्षित भी थे, तो वो उसके अंदर जाने से डरते थे। वो अपना समय बाहर बैठ के ही व्यतीत किया करते थे, भजन कीर्तन किया करते थे, भगवान से प्रे किया करते थे। उस समय की कुछ रियल फोटोज को भी इस तरफ वॉल पे दिखाया। किसी को भी टच नहीं करना है।
এখানে দেখাচ্ছে যে যখন হচ্ছে ভূমিকম্প হয়েছিল গুজরাটে 2001 সালে, তারপরে যে কেমনভাবে কোন কোন মন্ত্রীরা কীভাবে মিটিং করছে, সেখানে কী কথা হয়েছিল, আলাপ আলোচনা, এবং কীভাবে এই পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করেছিল, তার সব তথ্য এই জায়গাতে দেখি। लाल इलाके पर सबसे ज्यादा असर हुआ। 25,000 विस्थापित नागरिकों को अस्थायी शरण और भोजन प्रदान किया गया है। साथ ही और अधिक लोगों को शरण दी जा सके, इस पर काम हो रहा है। विदेशी सहायता के भी दस्तावेज तैयार हो रहे हैं और विदेशी मदद को लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। बचाव अभियान में तेजी लाई और अधिक लोगों को स्थानांतरित। भूकंप के 9 दिन बाद मुझे अपडेट चाहिए और वो भी जल्द। पिछली रिपोर्ट के बाद से हम और 50,000 लोगों को पुनर्वासित करने में सफल हुए हैं और ये अभियान अभी भी जारी है। केंद्र ने हमें ये भी आदेश दिया है कि हम गुजरात में एक कार्यबल का गठन करें जो हमारे सभी अभियानों को सुव्यवस्थित करे और आगे आने वाली आपदाओं के लिए तैयार रहे। इन अभियानों, योजना प्रबंधनों, वित्तीय और प्रशासनिक कार्यों को संभालने के लिए योग्य और कुशल लोगों का चुनाव कीजिए। हमें इस पर काम करने के लिए सबसे होनहार और काबिल लोगों की जरूरत है। गुजरात सरकार ने आधिकारिक रूप से GSDMA का गठन किया, जिसका मुख्य काम गुजरात के पुनर्वास और पुनर्निर्माण में सहायता प्रदान करना था। गुजरात को वापस खड़ा करने में इस संस्था का अहम योगदान रहा। आज यह गुजरात सरकार का सबसे महत्वपूर्ण प्राधिकरण है, जिसमें बहुत ही प्रशिक्षित लोग काम करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी आपात स्थिति में गुजरात के लोग सुरक्षित हैं। वीडियोस बंद कर दीजिएगा। এই মেজটা দেখুন, যেখানে আমরা হাঁটছি সেখানে পুরোপুরি 3D পিকচার, কারণ মনে হচ্ছে না আমরা স্ক্রিনের উপর দিয়েই আমরা হাঁটছি। এখানে দেখুন মানে চলমান যে ভিডিওগুলো, এই ভিডিওগুলো স্ক্রিনটা দেখুন, আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেই জায়গাতেই যেন আছে। এবং এই দেখুন এখানে জলের যে স্ক্রিনটা দেখাচ্ছে, যেটা আসলে স্ক্রিন নয়, এটা এইরকম টেকনোলজি দিয়েই ব্যবহার করেছে। এবং এখানে অনেকগুলি কাঁচের পিলার আছে, যেখানে আমরা কখনো বুঝতেই পারবেন না যে আমরা কেমন জায়গায় আছি। এখানে সত্যি না গেলে বলে বোঝানো যাবে না যে এই মিউজিয়ামটি কতটা উন্নত বানিয়েছে। दूसरी स्क्रीन का उपयोग कर लीजिएगा। उस स्क्रीन में एरर आ जाएगा, दूसरी स्क्रीन का उपयोग कर लीजिएगा। इससे जो लोग भी देख लेते हैं वो देखिए कुछ कमरों को बना करके लगता है। જગ્યા હતા અને ઘણા મકાનો એવા હતા જે ઊભા હતા. મકાનોની જે પરિસ્થિતિ જોયા પછી એમને જ્યાં રિપેર થઈ શકતું હતું એની રિપેરિંગ ટેકનિક્સ અમે એમને આપી કે ભાઈ આ રીતે રિપેર કરો તો તમારા મકાનને કાંઈ તકલીફ નહીં થાય. ઘણા મકાનો સામાન્ય નુકસાનમાં હતા, ઘણા વધારે હતા તો એને રેટ્રોફિટ જે અમારી ભાષામાં કહે એની એડવાઇસ આપી. फैला था। लगभग 3 प्रभावित हुए थे। भुज में लगभग 6,356 और अंजार में लगभग 1,771 घर पूरी तरह ध्वस्त हो गए थे। इमारतें, स्कूल, अस्पताल बर्बाद हो गए। लोगों ने परिवार खो लिए। संचार और बिजली की लाइनें ठप थी। भुज, बचाओ, रावल और अंजार हर तरफ सिर्फ निराशा में डूबे चेहरे थे, जिनकी आंखों में मायूसी साफ झलक रही थी।
स्थिति की जानकारी लेने के बाद गुजरात सरकार ने सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया की और यह सुनिश्चित किया कि लोगों और प्रशासन के बीच कुशल और प्रभावी सहयोग हो। सहायता मांग रहे हर हाथ को थामने के लिए कई हाथ आगे बढ़े। समाज के वर्ग, जात-पात और धर्म के बंटवारे को भूलकर दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों ने इस प्राकृतिक विनाश की घावों को भरने में मदद की। मजदूर, ट्रक चालक, किसान, विद्यार्थी को, हमारे सुरक्षा बल, डॉक्टर और नर्सिंग कर्मचारी, राज्य सरकार के सभी विभाग, नगर घोषणाकार, वास्तुकार, वैज्ञानिक, गैर सरकारी संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक और राजनीतिज्ञ सभी इस राहत कार्य में मदद करने के लिए जुट गए। भूकंप के तुरंत बाद लाखों लोगों को तंबू से अस्थायी आश्रयों में भेजा गया और सैकड़ों सामुदायिक रसोइयों ने लोगों को ताजा भोजन परोसा। भूकंप आने के कुछ ही दिन के अंदर तंबू में अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए। पूर्व निर्मित संरचना में जनता के लिए स्वास्थ्य लैब खोला गया, जिससे बीमारियों के फैलाव पर नजर रखी जाए और लोगों की मदद भी हो। इसके तुरंत बाद जल्द चेतावनी के लिए GIS आधारित रोग निगरानी शुरू की गई, ताकि किसी भी संक्रामक रोग को फैलने से रोका जा सके। अधिकारी भी समस्याओं और जरूरतों को जानने के लिए भूकंप प्रभावित तालुकों में रहे। भुज में और अन्य इलाकों में पुनर्निर्माण में तकनीकी सहायता के लिए स्थानीय प्राधिकरण बने। साबरकांठा में स्थानीय प्रशासन, गैर सरकारी संघ और लोगों ने साथ मिलकर काम किया। कलेक्टर कार्यालय में केंद्र बनाया गया और राहत सामग्री के लिए सहायता मांगी गई। जल्द ही देश के कोने कोने से राहत सामग्री आने लगी, जिसे फिर कच्छ जिले के सबसे अधिक प्रभावित हिस्सों में वितरित किया गया। तत्काल संकट प्रबंधन की योजनाएं चल रही थी, लेकिन फिर भी भविष्य के बारे में व्यापक अनिश्चितता थी। ऐसे संकट के समय जब चारों ओर विनाश, भय और आशंकाएं फैली हों, तो महत्वपूर्ण हो जाती है एक आशा की किरण, एक मार्गदर्शक का साथ। सौभाग्य से गुजरात के लोगों के लिए इस भूमिका को उनके नेता श्री नरेंद्र मोदी ने सफलतापूर्वक निभाया, जिन्होंने भूकंप के कुछ महीने बाद ही मुख्यमंत्री का पद संभाला था। मुख्यमंत्री मोदी की दूरदर्शिता, सक्रिय दृष्टिकोण और दृढ़ता ने न केवल आपदा प्रबंधन प्रयासों को सुविधाजनक बनाने और जारी रखने में मदद की, बल्कि एक प्रभावी पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यक्रम के निर्माण में भी मुख्य भूमिका निभाई। आपको शायद जानकारी होगी, अभी यूएन का बहुत बड़ा अवार्ड है। विश्व के सारे रिपोर्ट्स कहते हैं कि भूकंप के बाद लोगों को बाहर आने में कम से कम 7 साल लगते हैं और उसके बाद बैठना शुरू करते हैं, 10 साल के बाद चलना शुरू करते हैं। गुजरात की स्टेट 100 साल का सबसे बड़ा भूकंप होने के बाद भी 3 साल के भीतर वे दौड़ने लगते हैं। पूरे के पूरे शहरों को नए सिरे से बनाकर नया रूप दिया गया। जीवन रक्षी आपस में जुड़ी सड़कें बनाई गई, ताकि आपदा के दौरान जीवन बचाया जा सके। जल निकायों, सामुदायिक संरचनाओं और स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं को अंतर्निहित सुरक्षा उपायों सहित नए ढंग से बनाया गया, ताकि वे आपदाओं से सुरक्षित रह सकें। इन प्रयासों की विशेषता न केवल पुनर्निर्माण का पैमाना था, बल्कि इनमें लगा समय भी था। ताइवान, तुर्की, जापान और मैक्सिको जैसे कई अन्य देशों में भूकंप पुनर्निर्माण कार्यक्रमों में लगभग 40,000 से 72,000 घर बनाने में 4 से 6 साल लग गए। ये बहुत गर्व की बात है कि गुजरात में केवल 2 ही वर्षों में 1,43,000 घरों का पुनर्निर्माण और 8,92,000 घरों की मरम्मत की गई। 2001 के गुजरात भूकंप से पहले इतने बड़े पैमाने पर भूकंप रिकवरी कार्यक्रम चलाने का कोई अनुभव नहीं था। इसलिए प्रयोग की गई और जांची गई निर्देशित प्रतिक्रिया को सुविधाजनक बनाने की कोई विधि नहीं थी। मुख्यमंत्री मोदी की दूरदर्शिता और सक्षम नेतृत्व के कारण ही एक प्रभावी भविष्यवादी कार्य योजना की संकल्पना और रूपरेखा बनी और इतना बड़ा कार्यक्रम संभव हो पाया। इसने एक नए आपदा प्रबंधन कानून का मार्ग भी प्रशस्त किया, जिसने न केवल राष्ट्रीय कानून बल्कि अन्य देशों के आपदा प्रबंधन कानून को भी प्रेरित और प्रभावित किया। गुजरात दूसरा ऐसा राज्य बना जहां प्रभावी आपदा प्रबंधन और जोखिम कम करने के लिए कानूनी और नियामक ढांचा बना। गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2003 के रूप में श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण और निर्देशों को आगे बढ़ाते हुए GSDMA का गठन हुआ, जिसे पुनर्निर्माण, पुनर्वास और आपदा जोखिम न्यूनीकरण का कार्य सौंपा गया। इस प्रकार बिल्डिंग बैक बेटर अस्तित्व में आया। मुख्यमंत्री मोदी का दृष्टिकोण था इस आपदा को एक अवसर में बदलना और एक नया गुजरात बनाना। मुख्यमंत्री मोदी ने आपदा में लगे घावों पर मरहम लगाने के लिए अथक प्रयास किया और यह सुनिश्चित किया कि इस भारी नुकसान की भरपाई के लिए एक बड़े स्तर पर पुनर्निर्माण और पुनर्वास किया जाए। वे व्यक्तिगत रूप से NGO, सामुदायिक सहायता संगठनों, स्थानीय और सरकारी निकायों के साथ साथ कॉर्पोरेट से भी समर्थन हासिल करने के लिए जुट गए। राज्य सरकार ने एक विस्तृत बहुक्षेत्र दृष्टिकोण के साथ परियोजनाओं की नई श्रृंखला लागू की। इनका उद्देश्य था बुनियादी ढांचों का विकास, स्थानीय अर्थव्यवस्था और स्थानीय शिल्प और वस्त्र उद्योग को पुनर्जीवित करना, आजीविका समर्थन, औद्योगिकीकरण और दीर्घकालिक क्षमताओं का निर्माण। मुख्यमंत्री मोदी ने ये भी सुनिश्चित किया कि कच्छ की संस्कृति, हस्तशिल्प और परिदृश्य को उभारकर कच्छ में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। और बहुत जल्द एक नए कच्छ का उदय हुआ, जो न सिर्फ फिर से अपने पैरों पर खड़ा हुआ, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा विस्तृत और मजबूत भी हुआ। कच्छ के विकास की ये यात्रा बहुत ही प्रेरणापूर्ण है। लोगों के अदम्य साहस और उनके नेता के दृढ़ संकल्प ने राज्य को पुनर्जीवित किया। गुजरात विनाश से उभरकर उद्योग, कृषि, पर्यटन, नवीनीकरण और बेहतर शिक्षा का समृद्ध केंद्र बना,
जैसे राख के ढेर से अमर पक्षी उठ खड़ा होता है। भूकंप की घटना बीते 2 दशक से ज्यादा गुजर गए हैं। जो नष्ट हो गया था उसे फिर से बनाया गया। इंसान नहीं है, भूभाग का हिस्सा नहीं है, ये कष्ट तो स्पिरिट है, जीती जागती भावना है, जिंदा दिल मनोभाव। आशा ने नया जन्म लिया, सपने फिर से देखे गए, जिंदगी भी आगे बढ़ी और एक बार फिर से हिम्मत और हौसले की जीत हुई। এখানে আমাদের দাঁড় করে দিয়েছে, এখানে সবাইকে বলে দিয়েছিল যে যেখানে দাঁড়াবেন সেখানে কোনো একটা জায়গা ধরে নেবেন, এবং যারা মাঝখানে দিকে দাঁড়াচ্ছেন ধরার জায়গা আছে, তারা যারা ধারে দাঁড়াবেন তার রেলিংটা ধরে নিতে, কারণ এই জায়গাতে বেশ কিছুক্ষণ একটি শো চলবে, মনে হয় যেন আমরা ভূমিকম্প চলছে, ভূমিকম্প হচ্ছে সেই স্থানে আমরা আছি। কারণ ভূমিকম্পের সময় মানে আমাদের ওখানে ওই স্থানের যে মাটিগুলো কেমনভাবে কেঁপেছিলো, কীভাবে ভেঙে গেছিলো সেটা এখানে উপলব্ধি করে দিয়েছিল। সত্যি আমরা মানে প্রথমের দিকে ভয় পেয়ে গেছে, মনে যেন সত্যি এখানেই ভূমিকম্প হচ্ছে, এরকম একটা পরিস্থিতি ক্রিয়েট হয়েছিল। এটাই হচ্ছে, এবং এরপরে হচ্ছে লাস্ট একটি শো আছে, সেটাই হচ্ছে শো কমপ্লিট, এবং এটা দেখতে প্রায় আমাদের 4 থেকে 4.5 ঘন্টা সময় লেগেছিল। যদি কখনও কেউ গুজরাটে গিয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই এটা দেখতে কিন্তু ভুলবেন না।
नीचे देख के चलना है, पैर स्लिप ना हो जाए वो ध्यान रखना है। जिन लोगों को सेल्फी फोटो निकालना वो निकाल सकते हैं, 2 मिनट का समय रहेगा आपके पास। ये स्टेप के ऊपर चलना नहीं है, नहीं बैठना है, ऊपर नहीं चलना है। और जिन लोगों का सेल्फी फोटो हो जाए वो बाहर निकल जाना है, बीच में रुकना नहीं है, दूसरे को चलिए 2 मिनट के लिए सभी लोग शांति बनाए रखेंगे। ये इस म्यूजियम की लास्ट गैलरी है। साल 2001 के भूकंप में जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उसे हम डिजिटल श्रद्धांजलि देंगे। 2 मिनट का एक वीडियो है, सामने की ओर दिखेगा। वीडियो देखिए। जिंदगी अनंत होती है, लेकिन इसकी डोर अपने हाथों में नहीं होती। इसे जितना भी अपने मुताबिक जीने की कोशिश करो, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम चाहकर भी टाल नहीं सकते। जैसे 26 जनवरी 2001 को हुआ गुजरात भूकंप। इस अराजकता में सिर्फ एक ही चीज टिकी रही और वो थी गुजरात के लोगों की इच्छा शक्ति, जिन्होंने अपने दुखों को मात दी और अपने प्रयत्नों से इस भूमि की पुनर्संरचना होते हुए देखी जो अपरिहार्य थे। हम इस धरती के उन फरिश्तों को याद करते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाकर हमें इस अंधेरे से बाहर निकलने के लिए तारों की तरह हमारी सहायता की। आइए कृतज्ञता के इस पवित्र स्थल पर यहाँ सभी अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना कीजिए और उनकी खोई रूहों को श्रद्धांजलि दीजिए। हम सब हमारा हिस्सा हैं, तारों से हम हैं रोशन, हमारे कण कण में करिश्मा है। दिखते हैं जिस्मान, लेकिन हम सब एक जान है। आइए हम उन रूहों को अपनी यादों में जिंदा रखें। जो रूह बुझ गई है उन्हें अपनी ऊर्जा से यादों में सुलाएं। जो गए उनके, हमारे और पूरे गुजरात के दिलों के राह भर जाएं। चलिए इस कृतज्ञता के स्थल पर उन दिवंगत आत्माओं की यादों को साझा करें। उनके लिए आप जो ज्योति आंख प्रज्वलित करेंगे वो ज्योत उनका एक प्रकाश पुंज बनेगा जो हर रात आसमान में प्रतिबिंबित होगा। चलिए यहाँ से सब लोग आगे की ओर। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে কিন্তু ভুলবেন না। সবাই সাথে থাকুন এবং এরকম আরও অনেক ভিডিও আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব।